Hello viewers, here I have brought an interesting fun game which you can play with your kids very easily. And you know what? You are not only playing but also teaching them concepts of English through this activity. So like the idea? Yes. So this is the fun game to teach English which is adapted snakes and ladders. So here is the image of a snakes and ladder. Now, this is my channel Evening Remedials and I am Ashlekha Gupta, special educator, and today's topic is action words that is verb. So what are the objectives? Now everybody wants to know what their child is going to gain by this activity. So let's see. The aim of this activity is to enhance the knowledge of action words, identify verbs in the phrase or sentence, improve reading comprehension. That means child will read the phrase or sentence and understand it. Then he has to express himself by performing that activity. Then boost up self-confidence as every game do. So this game will also do the same. Inculcate the values like leadership, team spirit, honesty, follow rules and regulation, and etc. So here is the description. Now let's see how we need to adapt a common game into an effective and interesting teaching aid and how to play it. So let's see. You have to make your own snakes and ladder as per the activity. Yes, whatever you want to teach, you have to make your own snakes and ladder according to that. Right, so here's the description how you are going to make and play the game. तो पेरेंट्स यहाँ देखिए राइट द एक्टिविटी एट द बॉटम ऑफ ईच लैडर. आप क्या करेंगे, आप एक गेम बोर्ड लेंगे, उसको स्नेक्स एंड लैडर की तरह ही ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे और फिर उसको आपको उसको कैसे अडेप्ट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज राइट द एक्टिविटी एट द बॉटम ऑफ ईच लैडर. हर लैडर के बॉटम नंबर पे आपको एक एक्टिविटी लिखनी है जिसमें एक एक्शन वर्ड होगा जो आपको उसको टीच करना है. फॉर एग्जांपल अगर आपको हॉप वर्ड उसको सिखाना है देन यू विल राइट अ फ्रेज with the hop word, like you can write hop like a rabbit or hop like a frog. So उससे बच्चे को पता चलेगा हॉप एक एक्शन वर्ड है, जो फ्रॉग करता है उसको हम हॉपिंग कहते हैं. So this is how you are going to introduce your action word. Similarly, जहाँ जहाँ भी snake का mouth होगा, जितने भी snakes आप draw करेंगे उसके जो mouth वाला जो number होगा वहाँ पर भी आप इसी तरह की funny activities डालेंगे जिसमें आप action words को use करेंगे जो आपको सिखाने हैं. तो वंस द चाइल्ड रीचेस द बॉटम ऑफ द लेडर, जब हम खेलेंगे वाइल प्लेइंग, जब भी बच्चा उस सपोज बॉटम ऑफ लैडर पे पहुंचता है तो ही वुड लाइक टू climb the ladder, but you have to stop him. You have to tell him that he or she has to read the activity written there and perform the particular activity appropriately. उसको ठीक से उस particular activity को पढ़ना है और उसको perform करना है. जब तक वो नहीं करेगा he will not be allowed to climb the ladder. ये आपको बच्चे को सिखाना होगा. ये रूल होगा उस गेम का जो आपको बच्चों को पहले से बताना होगा. सिमिलरली इफ द चाइल्ड रीचेज एट द माउथ ऑफ द स्नेक, तो उसे एज पर रूल उसे नीचे आना होता है क्योंकि स्नेक वहाँ पर उसको काट लेता है. बट यहाँ पर हम एक चेंज करेंगे. वहाँ पर एट द माउथ ऑफ द स्नेक हम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी लिखेंगे जिसमें एक एक्शन वर्ड होगा और बच्चे को वो एक्टिविटी रीड करके परफॉर्म करनी है. अगर वो उसको परफॉर्म करता है देन ही कैन रिमेन देयर on the same number. He need not to come at the tail of the snake. तो ये उसको एक बेनिफिट मिलेगा अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है. तो डेफिनेटली हर बच्चा उसको करना चाहेगा और अपने आप को स्नेक बाइट से बचाना चाहेगा. तो ये एक एक्टिविटी, ये एक चेंज हम इस स्नेक्स एंड लैडर में करेंगे. पुट एटलीस्ट 10 ladders and 10 snakes on your game board. तो इस तरह से हम इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाएंगे और एक्टिविटीज भी हम इसमें पुट करेंगे जिससे कि ये इंटरेस्टिंग और बहुत फन लविंग बन जाएगा.
तो अगर आप अपना गेम बोर्ड बनाते हैं तो डेफिनेटली आप 10 लैडर्स और 10 स्नेक्स ज़रूर डालिए, जिससे कि 20 एक्टिविटीज़ आप उस बच्चे को करने के लिए या सब प्लेयर्स को करने के लिए दे सकते हैं, और उसमें आप 20 एक्शन वर्ड्स बच्चे को सिखा सकेंगे। राइट द एक्टिविटी विच इंक्लूड्स रिक्वायर्ड एक्शन वर्ड्स टू बी टॉट। जो आपको पढ़ाने हैं आप उन एक्शन वर्ड्स को यूज़ करते हुए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन अपने आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। ब्लो योर चीक्स, यू कैन पुट ब्लो अ बलून, उसमें आपको बलून साथ में रखना होगा। जो भी एक्टिविटी आप डालेंगे अगर उसमें कुछ आइटम्स रिक्वायर्ड हैं तो यू हैव टू बी रेडी विद दोज आइटम्स। तो ब्लो योर चीक्स, हॉप लाइक अ फ्रॉग, इफ आई वॉन्ट टू टीच हिम ब्लो, hop, whistle, peel, act, these action words, then you have to write the activities using these action words. तो ये आप इस तरह से बच्चों को सिखा सकेंगे. So you can make it more interesting by including activities as per child's interest and capabilities. ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चा जो कर सकता है वही एक्टिविटीज़ आप पुट करेंगे, अदरवाइज उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा. सो पेरेंट्स, यहाँ एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ प्लेयर इन दिस गेम, सो you also have to perform all the activities. अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे then child will not be able to get any interest. तो वो उसके लिए एक बोरिंग गेम हो जाएगा. तो डेफिनेटली आपको भी उन बच्चों के साथ वो सारी एक्टिविटीज़ करनी होंगी जो आप वहाँ पर उनके लिए लिखेंगे. सो नाउ ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड, यू ऑल नो क्या क्या चाहिए होता है. हमें भी इसमें भी हमें कुछ खास चीज़ें नहीं चाहिए, जस्ट अ गेम बोर्ड जो आप बनाएंगे, देन डाइस, पेग्स एंड आइटम्स एज पर एक्टिविटीज़. छोटे छोटे आइटम्स जो आप एक्टिविटीज़ करने के लिए आप डालेंगे वो आइटम्स आपको वहाँ पर रेडी होने चाहिए आपके पास. So now here are the easy ways to make your own snakes and ladder. आप खुद अपना गेम, अब मैं आपको 4 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ यहाँ पर, how you can make your own game. So let's see. This is the first स्टाइल. आप कोई कार्डबोर्ड लीजिए, उस पर एक वाइट शीट आप पेस्ट कर सकते हैं, एंड देन मेक स्क्वायर्स. आप एज मेनी नंबर्स जितने आपको उस गेम में चाहिए, आप यू कैन मेक इट फॉर 1 to 30, 1 to 50, 1 to 100, एज मच एज यू वांट. और फिर आप उसमें थोड़े बहुत स्नेक्स और लैडर सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि आपको फिर वो एक्टिविटीज़ उसके अंदर पुट करनी है. तो दिस इज़ वन वे. दूसरा वे है ये, अगर आप ड्राइंग में बहुत अच्छे नहीं हैं, यू कैन मेक इट लाइक दिस ऑल्सो. आप एक जिगजैग पाथ बनाइए और उसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कीजिए. देन यू कैन राइट द नंबर्स 1 to 30, 1 to 50 और वट एवर, और फिर उसके अंदर कुछ स्नेक्स एंड लैडर्स आप ड्रॉ करिए और फिर एक्टिविटीज़ पुट करिए. तो एक और स्टाइल है, वो और भी इजी है. अगर आप नहीं ड्रॉ करना चाहते हैं, आप एक ओल्ड कैलेंडर लीजिए, और कैलेंडर में 1 to 30 नंबर्स होते ही हैं और स्क्वायर्स होते हैं. तो उसमें आप स्नेक्स एंड लैडर्स ड्रॉ करके उसको आप एक कार्डबोर्ड पर पेस्ट कीजिए, और उसमें स्नेक्स एंड लैडर्स बना ड्रॉ करके आप एक्टिविटीज़ पुट कर सकते हैं. और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं और आपके घर में एक स्नेक्स एंड लैडर है ऑलरेडी गेम, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. आपको कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो हियर इज़ द गेम बोर्ड. आप इसको स्पॉइल मत कीजिए, आप सिंपली इसको यूज़ करिए. और आप कैसे इसको अडेप्ट कर सकते हैं, यू विल सी हियर. आप एक प्लेन शीट लीजिए और उस पर वो सारे नंबर्स लिखिए जो एट द बॉटम ऑफ द लैडर हैं. सपोज दिस इज 3, देन 9, देन माउथ ऑफ स्नेक वाले भी नंबर्स आपको लिखने हैं, 31, 50, देन 34, 35, then 20, similarly 39, then 45, 42. These all numbers you have to put on the sheet, like I have written here 3, 9, 20, 31, 34, 35, 39. So you have to write all the numbers here. Then आप हर नंबर के आगे एक एक्टिविटी लिखेंगे, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी, और उसमें आप वो वाले वर्ब्स यूज़ करेंगे जो आप बच्चे को टीच करना चाहते हैं, like blow, behave, gallop, do 10 sit-ups, bend, stick, skip, jump. So these are the action words which I wanted to teach, so I have written these. You can change them as per your need or requirement. और अब हम इसको खेलेंगे कैसे. सपोज आई एम जी, तो मैं 4 पे हूँ और मैं डाइस पुट करती हूँ. आई थ्रो अ डाइस एंड द नंबर कम्स 5. तो मैं 5
नंबर्स मूव करूँगी 1 2 3 4 5. I'll reach at 9. Now what I have to do is I have to follow the list. 9 पे क्या activity लिखी है? Act like a monkey. Then I have to read and then I have to act like a monkey. Then only I will be able to get the benefit of climbing the stairs and reach at 33. अगर बच्चा परफॉर्म नहीं करता है और रीड नहीं कर पाता है या किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि वो नहीं कर पाया है, then he has to remain here only. So this is the change in the game. So अब आप समझ गए होंगे कि इस गेम को किस तरह से खेलना है और होल हार्टेडली आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सीखे और इंटरेस्टिंग वे में इस गेम को खेले. सो पेरेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि इस गेम को हमें कैसे अडेप्ट करके इंटरेस्टिंग बनाना है और बच्चे को खिलाना है और कैसे इस गेम को एक टीचिंग एड में कन्वर्ट करना है. सो पेरेंट्स, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ न्यू आइडियाज़ मिले होंगे कि आप बच्चों को प्ले वे में किस तरह से एक्टिविटीज़ करा सकते हैं. These are the URLs with the help of which I have made this video. So thank you parents. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है then you can please do like my video and subscribe my channel. Thank you so much.